Hi, hello guys. This is Mahendra Jakulwar and once again welcome to my YouTube channel. Dear friends, in this video lecture we are going to start the very important chapter of 10th standard, that is heat. In this chapter we are going to learn some concepts of heat such as latent heat, anomalous behavior, specific heat capacity, regelation, dew point and humidity. हीट जो चैप्टर है ये फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, तो इसलिए इस चैप्टर को हम छोटे छोटे पार्ट में स्टडी करेंगे। आपको छोटे छोटे वीडियोस मिलते जाएंगे। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब द चैनल और उसके साइड वाले बेल आइकन को भी प्रेस कीजिएगा ताकि आपको मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं हमारा फिफ्थ चैप्टर, दैट इज हीट। Actually, heat is studied under the special branch of physics and that is thermodynamics. In your textbook, two questions are asked at the beginning of this lesson and the first question is, what is the difference between heat and temperature? And the second question is, what are the different ways of heat transfer? So, पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, what is difference between the heat and temperature? Heat is a form of energy, right? Which is flow from body of high temperature to body of low temperature. Heat एक एनर्जी का फॉर्म है जो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ फ्लो होता है। टेम्परेचर इज द डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। कोई ऑब्जेक्ट कितना गर्म है या फिर कितना ठंडा है, इसको मेजर करने वाले फिनोमिनॉन को बोलेंगे हम टेम्परेचर। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड टेम्परेचर। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इज फ्लो फ्रॉम हाई टेम्परेचर टू लो टेम्परेचर. And the second one is temperature is the degree of hotness or coolness of an object. The SI unit of heat is joules and the CGS unit is calorie. And the device which is used to measure the heat is calorimeter. हीट को हम किस डिवाइस से मेजर करते हैं तो उस डिवाइस का नाम है कैलोरीमीटर. टेम्परेचर का जो ऐसा यूनिट होता है वो होता है केल्विन. It's not degree Celsius. हमेशा ध्यान में रखना. What is the SI unit of temperature? So the answer is Kelvin. It's not a degree Celsius. And the device which is used to measure the temperature is called as thermometer. The thermometer which is used in our school or laboratory is called as laboratory thermometer. The second one is clinical thermometer. Actually, this thermometer is used to measure the human body temperature. And the third one is सिक्स थर्मामीटर. सिक्स थर्मामीटर का यूज जो है वो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में होता है जब हम किसी भी सिटी का या फिर टाउन का टेम्परेचर मेजर करते हैं तो उसके लिए हम एक स्पेशल टाइप का थर्मामीटर यूज करते हैं जिसको बोलते हैं हम सिक्स थर्मामीटर. ओके, हमको थर्मामीटर के बारे में स्टडी नहीं करना है, हमको स्टडी करना है हीट के बारे में. सो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हीट एंड temperature. Heat is a form of energy which always flow from body of high temperature to body of low temperature. The SI unit of heat is joule, CGS unit is calorie, and the device which is used to measure the heat is called as calorimeter. The second one is temperature. Temperature is the degree of hotness or coolness of an object. बॉडी कितना गर्म है या फिर ठंडा है इसको मेजर करने के लिए जो कंसेप्ट या फिर जो फिनोमिनॉन को यूज किया जाता है उसको बोलते हैं हम टेम्परेचर. द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर इज केल्विन एंड द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द टेम्परेचर इज कॉल्ड एज थर्मोमीटर. इज इट क्लियर? एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ हीट ट्रांसफर? हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी और यू कैन से द बॉडी ऑफ हाई टेम्परेचर टू बॉडी ऑफ लो टेम्परेचर. But there are different way of heat transfer or different mode of heat transfer. The first one is conduction, second one is convection, and the last one is radiation. There are three ways of or three modes of heat transfer. Number one is conduction, number two is convection, and number three is radiation. So what is meant by conduction? Let's see in details. Dear students, conduction is the mode of heat transfer from one atom to another atom, or you can say one molecule to another molecule without actual transfer of atoms or molecule. कंडक्शन में एक एटम से दूसरे नेबरिंग एटम की ओर हीट ट्रांसफर होते जाता है, राइट? लेकिन यहाँ पे
एटम्स जो है वो अपने जगह पे से मूव नहीं होते, वो अपनी जगह पे स्टेबल होते हैं, लेकिन हीट एनर्जी जो है वो एक एटम से उसके नेबरिंग एटम की तरफ ट्रांसफर किया जाता है। ऐसे मोड को हम बोलते हैं कंडक्शन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन? कंडक्शन इज द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर in which heat is transferred from one atom to neighboring atom, or you can say one molecule to neighboring molecule, without actual transfer of atoms or molecules, or without actual movement of atoms or molecule। यहाँ पे atoms और molecules का actual movement नहीं होता, वो अपने जगह पे stable होते हैं, लेकिन heat energy transfer की जाती है। Conduction takes place only in solids, okay? सिर्फ solid में conduction होता है। You can see in the picture, the heat energy is transferred from one atom to another neighboring atom, but the atoms are present on their position. They will not move from one place to another place. So this is the first mode of heat transfer. It is called as conduction. आसान भाषा में समझते हैं, जैसे मान लो कि कुछ 4-5 बच्चे ऐसे खड़े हैं एक रो में, और पहले बच्चे के पास कोई ऑब्जेक्ट है, कोई किताब है, राइट? और उस किताब को लास्ट पर्सन को देना है। उस समय जो पहला पर्सन है वो क्या करेगा? अपने पास जो ऑब्जेक्ट है वो अपने नेबर को देगा, और वो जो सेकंड पर्सन है वो थर्ड पर्सन को देगा, थर्ड पर्सन फोर्थ पर्सन को देगा, फोर्थ पर्सन फिफ्थ पर्सन को। सो इन दिस वे द ऑब्जेक्ट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, राइट? लेकिन यहां पे वो जो पीपल है, वो जो लोग हैं, वो अपनी जगह पे से मूव नहीं होते हैं, ओके? जैसे पिक्चर में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है, राइट? लेकिन वो जो पर्सन है वो मूव नहीं हो रहे। कंडक्शन में सेम ऐसा ही होता है। जो बच्चे के हाथ में आपको किताब दिखाई दे रहा है, मान लो कि वो हीट है। अब ये हीट कहां से कहा जाएगा? हमेशा हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। मान लो कि पहला बंदा हॉट बॉडी है और लास्ट पर्सन इज ए कोल्ड बॉडी। सो हीट is transferred from one atom to another neighboring atom। वो जो हीट है एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ जा रहा है, राइट? एक पर्सन ले रहा है, दूसरे पर्सन को दे रहा है, दूसरा पर्सन तीसरे पर्सन को देगा, लेकिन यहाँ पे वो पर्सन अपनी जगह से मूव नहीं होगा। सो सच टाइप ऑफ हीट ट्रांसफर इज कॉल्ड एज कंडक्शन। कंडक्शन में यही होता है, राइट? एटम्स अपने जगह पे होते हैं, सिर्फ हीट ट्रांसफर किया जाता है। जैसे इस एग्जाम्पल में एक पर्सन दूसरे पर्सन को बुक ट्रांसफर कर रहा है, ठीक उसी तरह कंडक्शन में भी एक एटम अपनी हीट एनर्जी अपने नेबरिंग एटम को ट्रांसफर करता है। सो इन दिस वे द हीट एनर्जी इज फ्लो फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। और कंडक्शन हमेशा कहां पे होता है? कंडक्शन टेक्स प्लेस ओनली इन सॉलिड्स। सिर्फ और सिर्फ सॉलिड में ही कंडक्शन होता है, लिक्विड और गैसेस में कंडक्शन नहीं होता है, ओके? द सेकेंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इज कन्वेक्शन। And what is meant by the convection? Convection is also mode of heat transfer in which heat is transferred from hot body to cold body with actual movement of molecules or with actual movement of atoms। Conduction में actual movement नहीं हो रहा था, लेकिन convection में atoms का या फिर molecules का actual movement होगा। This atoms or molecules can move from one place to another place along with the heat। हीट को लेकर के एटम्स और मॉलिक्यूल्स एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, ऐसे मोड को बोलते हैं हम कन्वेक्शन। सो कन्वेक्शन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन पोर्शन टू अनदर पोर्शन विथ एक्चुअल मूवमेंट ऑफ एटम्स और मॉलिक्यूल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफर टेक्स प्लेस इन लिक्विड एंड गैसेस। सो हमेशा ध्यान में रखना है, कंडक्शन में हीट ट्रांसफर होता है, लेकिन उसके साथ में एटम्स भी मूव होते हैं। जैसे इस पिक्चर में दिखाई गया है, बुक एक पर्सन से दूसरे पर्सन को देना था, लेकिन इसमें उन्होंने हैंड टू हैंड ट्रांसफर नहीं किया। वो एक दूसरा बंदा जो है वो खुद बुक लेकर के आखिर तक जा रहा है या फिर लास्ट पर्सन तक जा रहा है, राइट? ऐसे मोड को बोलेंगे हम कन्वेक्शन। तो कन्वेक्शन कहां पे होता है? कन्वेक्शन लिक्विड और गैसेस में होता है, बिकॉज लिक्विड एंड गैसेस मॉलिक्यूल आर फ्री टू मूव। लिक्विड के मॉलिक्यूल और गैसेस के मॉलिक्यूल जो है वो फ्रीली मूव हो सकते हैं, लेकिन सॉलिड में ऐसा नहीं होता। सॉलिड के मॉलिक्यूल्स मूव नहीं हो सकते, इसलिए सॉलिड में कंडक्शन होता है। लिक्विड और गैसेस में द मॉलिक्यूल्स कैन बी फ्री टू मूव, देयरफॉर द मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन लिक्विड एंड गैसेस इज convection। In convection, the heat energy is transferred from hot portion to cold portion with actual movement of atoms or molecules।
And the third mode of heat transfer is radiation. The radiation is a heat transfer in which no material medium is required. रेडिएशन ऐसा मोड है हीट ट्रांसफर का जिसमें कोई भी मीडियम की जरूरत नहीं होती है. रेडिएशन इज अ मोड ऑफ हीट ट्रांसफर इन विच हीट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी विदाउट एनी मीडियम. यहाँ पे कोई मीडियम की जरूरत नहीं होती. जैसे पिक्चर में आप देख सकते हो, एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ हीट ट्रांसफर करना है तो क्या होगा, यहाँ पे वो पर्सन सीधा अपनी हीट ट्रांसफर कर देगा लास्ट पर्सन की तरफ. लेकिन यहाँ पे कोई मीडियम की जरूरत नहीं, इन बिटवीन कोई मीडियम नहीं. जैसे कंडक्शन में आपने देखा होगा, एक पर्सन से दूसरे पर्सन की तरफ, दूसरे पर्सन के तीसरे पर्सन की तरफ ऐसे हीट ट्रांसफर हो रहा था. सेकेंड मोड में एक पर्सन से हीट लेकर के दूसरा बंदा वो हीट लास्ट पर्सन को दे रहा है. लेकिन रेडिएशन में ऐसे कोई पर्सन की या फिर एटम्स की, मॉलिक्यूल्स की, या फिर आप बोल सकते हो मीडियम की जरूरत नहीं होती है. इन रेडिएशन हीट कैन ट्रांसफर विदाउट एनी मीडियम. सन से आने वाली जो हीट है हमारे अर्थ तक, वो विदाउट एनी मीडियम आ रही है. सो ऐसे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर को हम बोलते हैं रेडिएशन. 3 मोड देखे हमने, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन. कंडक्शन में क्या होता है, हीट एनर्जी इज ट्रांसफर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी without actual movement of atoms or molecules. The heat energy is transferred from one atom to another neighboring atom, and the conduction takes place in solid. Second देखा था हमने convection. Convection is the mode of heat transfer in which heat energy is flow from hot body to cold body with actual movement of molecules or atoms. Okay. Convection takes place in liquid and gases. And third mode of heat transfer is radiation. The mode of heat transfer in which no medium is required to transfer the heat. Hope you understand the difference between the heat and temperature and 3 mode of heat transfer. Dear friends, if you enjoyed this video, then please hit a like and subscribe to our channel and press the bell icon to get the notification of new videos. See you soon in next video. Till then, bye bye and take care.